تو بھائی ٹاپک ہے لیو وائگٹسکی کا نشو و نما سے متعلق نظریہ. جی، نشو و نما سے متعلق وائگٹسکی کا نظریہ ہے. وقوفی نشو و نما کو بتانے والوں میں سے ایک تو پیاجے ہیں، دوسرے جو ہے لیو وائگٹسکی ہیں ہمارے سلیبس کے اندر. تو پیاجے کے متعلق ہم نے پڑھا، اب ہم لیو وائگٹسکی سے متعلق جو ہے پڑھیں گے. وائگٹسکی جو ہے یہ رشین سائیکالوجسٹ ہیں، یعنی روسی ماہر نفسیات ہیں. جی، رشین سائیکالوجسٹ ہیں. تو ان کے متعلق جو ہے میں آپ کو جو ہے ایک مختصر سا ان کا ایک فوٹو شیئر کرتا ہوں، دیکھیے آپ. جی، یہ ہے لیو وائگٹسکی. اوکے، پکچر نظر آ رہی ہے. یہ رشین سائیکالوجسٹ ہیں، یہ سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں. ہم نے پیاجے سے متعلق بھی پڑھا کہ وہ بھی کنسٹرکٹیوسٹ ہیں، لیکن انہوں نے وہاں پر سماج کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، ثقافت کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، بلکہ خود جو ہے بچہ اپنی نالج کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، اس طرح سے انہوں نے کہا تھا. لیکن یہاں پر انہوں نے جو ہے سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے جو ہے نالج کی کنسٹرکشن میں یعنی تشکیل کے اندر، ذہنی نشوونما کے اندر سماج کا زیادہ رول ہوتا ہے، ثقافت کا زیادہ رول ہوتا ہے، اس طرح کا ان کا یقین تھا. یہ جو ہے بہت ہی فیمس ہوئے اور صرف بہت کم عمر میں 38 سال کے اندر جو ہے یہ اس دنیا سے چل بسے اور ہمارے لیے بہت سارا سرمایہ چھوڑ کر گئے. اونلی 38 ایئرس. جو ہے ان کا جو بھی کام تھا وہ جو ہے رشین لینگویج میں تھا، اور اسے جو ہے ٹرانسلیٹ کرنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ آج جو ہے ہمیں یہ نظریات ان کے پڑھنے کو ملتے ہیں انگریزی کے اندر. تو انہوں نے جو ہے جس بات پر فوکس کی ہے وہ جو ہے یہاں پر ہے فوکس آن سوشیو کلچرل ایسپیکٹس. انہوں نے جو ہے سماج کو اور ثقافت کو کافی اہمیت دی ہے. کسے جی؟ سماج کو اور ثقافت کو. کہ وقوفی نشو و نما کے اندر بچہ بذات خود جو ہے نشو و نما نہیں آ جاتی اسے، بلکہ جب یہ سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے بچے اور سماج کے اندر، اسی طرح سے جو ثقافت ہوتی ہے وہ ثقافت کے روایات اور اصولوں کی پابندی کی وجہ سے جو ہے بچے کی وقوفی نشو و نما ہوتی ہے. اس طرح سے ان کا ماننا ہے. اوکے، تو یہاں پر دیکھیے یہ رشین سائیکالوجسٹ ہیں. جی، یہ رشین سائیکالوجسٹ ہیں ایک، تو دوسرا جو ہے سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہے، تیسرا فوکس آن سوشیو کلچرل ایسپیکٹس، یعنی سماجی اور ثقافتی تناظر میں انہوں نے جو ہے ذہنی نشو و نما کے نظریے کو پیش کیا ہے. اتنی باتیں جو ہے یاد رکھنا ان کے متعلق جو ہے کافی ہے. اوکے، تو رشین سائیکالوجسٹ ایک ہیں، سوشیو کنسٹرکٹیوسٹ ایک ہیں، فوکس آن سوشیو کلچرل ایسپیکٹس. اوکے، یہ تین باتیں ہو گئی. چلیے، اس تھیوری کے اندر جو ہم بات کریں گے وہ جو ہے اہم چیز یہ ہے کہ جو ایسپیکٹس ہیں وہ تین ایسپیکٹس ہیں، ان کے متعلق ہم بات کریں گے کہ وائگٹس کی جو ہے وقوفی نشو و نما کو سماجی باہمی عمل قرار دیتا ہے. وائگٹس کی وقوفی نشو و نما کو کس کا عمل قرار دیتا ہے؟ یہ سماجی باہمی عمل، یعنی
समाजी मेल जोल जिसे हम कहते हैं, समाज के अंदर जो है लोगों का मिलना जुलना और उनसे जो है इंटरेक्ट होना, और उसके जरिए से जो है एक्सपीरियंसेस आना, तजुर्बात होना, उसके जरिए से नॉलेज कंस्ट्रक्ट होना, उसके जरिए से बखूबी नशोनुमा यानी जहनी नशोनुमा होना, ये इस तरह से जो है उनका कहना है। इसके अंदर मुआशरा जो है यानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा अहम है, मुआशरा जी, कम्युनिटी। और इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर जो कल्चर है, वो कल्चर को इन्होंने जो है ज्यादा अहमियत दी है, कल्चर को यानी सकाफत को। अगर कोई नजरिया ऐसा है जिसमें समाज को और कल्चर को ज्यादा अहमियत दी गई है, तो वो लेओ वाइगोत्स्की का वकूफी नशोनुमा का नजरिया है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ये जो है किस पस मंजर में जो है वकूफी नशोनुमा को बयान कर रहे हैं, ये जो है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट के तहत जो है ये बात करते हैं लियो वाइगट्स की। तो ये जो फर्द के अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो होते हैं, या फिर प्राइमरी मेंटल फंक्शंस जो होते हैं, वो समाजी बाहमे अमल के जरिए से हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस में कन्वर्ट होते हैं, ये इनका कहना है। तो यहाँ पर एक और फोटो देखिए जिसमें हम जो है बात करेंगे इनके काम के मुतालिक। जी है, ये थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इनके। सोशल इंटरैक्शन, पहला एस्पेक्ट क्या है? सोशल इंटरैक्शन, इसकी बात हम समझेंगे पहले। तो वाइगट्स की वकूफी नशोनुमा के अमल में समाज को ज्यादा अहमियत देता है, समाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, समाजी बाहमी अमल जिसे हम कहते हैं, उसे ज्यादा अहमियत देता है जी। समाजी बाहमी अमल या समाजी मेलजोल जिसे हम कह सकते हैं, इसे ज्यादा अहमियत देता है। यानी समाज में जो बच्चा रहता है, वहाँ दूसरों के मेलजोल से वो कई बातें सीखता है, जिससे उसकी वकूफी नशोनुमा होती है, ये इसका कहने का मकसद है। और उसी तरह जो है कल्चर को इसने बहुत ज्यादा अहमियत दी है जी। कल्चर को, कल्चर कहते हैं किसे? सकाफत को जी, सकाफत को कल्चर कहते हैं। तो वकूफ़ी नशोनुमा के अंदर सकाफत जो है बहुत अहम रोल अदा करने वाली होती है। उसी तरह जो है इसने तीसरा एस्पेक्ट कहा है जबान को, लैंग्वेज को। लैंग्वेज की जो है बहुत ज्यादा अहमियत होती है नशोनुमा के अंदर। अब ये देखिए कि किस तरह से होती है, ये बातें हम बात करेंगे जी। तो पहली चीज है प्राइमरी मेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं, वो क्या होते हैं। इससे पहले कि एक बात अगर मैं बता दूं तो ये होगा कि प्याजे जिस तरह से कह रहा था कि बच्चे जो है पैदाइशी तौर पर चंद प्राइमरी या लोअर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस के साथ पैदा होते हैं, जिसके तहत जो है उन्होंने उसे स्केमेटा करार दिया, और स्केमेटा के तहत जो है क्या होते हैं, चंद रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जैसे सकिंग रिफ्लेक्स, लुकिंग रिफ्लेक्स, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। ये जो है वह प्याजे कहा था। लेकिन यहाँ पर उसी तरह से लेव वाइगट्स की भी ये एतबार करता है, भरोसा करता है कि बच्चे जो है वकूफ़ी नशोनुमा के लिए ज़रूरी बुनियादी सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं। इसका भी यही वर्शन है, इसका भी यही कहना है कि बुनियादी सलाहियतों के साथ जो है बच्चे पैदा होते हैं। चंद बुनियादी या या वकूफ़ी आमाल जो बच्चे को हासिल होते हैं, वो जो है ये है जी। चंद जहनी आमाल जो बच्चे को हासिल होते हैं, वो क्या है? अटेंशन है जी, अटेंशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? तवज्जो कहते हैं। दूसरा जो है सेंसेशंस हैं जी। दूसरा क्या है? सेंसेशंस हैं।
सेंसेशन से मुराद तहस्सुस या महसूस करना है, हिस्सियात हैं, ये सेंसेशंस हैं। दूसरा जो है तीसरी चीज जो है परसेप्शन है जी, परसेप्शन जिसे हम इदराक कहते हैं, ये है। इदराक भी जो है बच्चे को पैदाइशी तौर पर हासिल रहता है, इदराक जी। उसी तरह मेमोरी पावर जी, यानी क्या है ये, हाफिजा है। क्या है, हाफिजा है। ये चार चीजें जो है प्राइमरी या आप कह सकते हैं लोअर ऑर्डर मेंटल ऑपरेशंस हैं या फंक्शंस हैं जो बच्चे को पैदाइशी तौर पर हासिल होते हैं। ये क्या है, ये प्राइमरी मेंटल ऑपरेशंस, ये चार हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा कि लेओ वैगेट्सी के मुताबिक प्राइमरी मेंटल ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं। वो अटेंशन है, सेंसेशंस है, परसेप्शन है और मेमोरी पावर है। ओके, तो आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इन चीज़ों में हम गौर करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें जो है मुतासिर होती हैं। देखिए, ये जो प्राइमरी मेंटल फंक्शंस जो हैं या ऑपरेशंस जो हैं वो हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस में कन्वर्ट होने के लिए समाजी इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। उसी तरह से वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, उसके लिए किस तरह से कन्वर्ट होते हैं उसके लिए जो है कल्चर वहाँ का डिसाइड करता है कि वो किस तरह से हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। राइट, समाजी बाहमी अमल के जरिए से ये प्राइमरी मेंटल फंक्शंस हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और इसको डिसाइड करने वाली चीज जो है वहाँ का कल्चर है कि किस तरह से करती है। अब देखिए कल्चर किस तरह से इसे डिसाइड करता है। यहाँ पर आप देखेंगे जी, एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से जो है आप मेमोरी पावर को ले लीजिए। मेमोरी पावर की हम मिसाली देते हैं हाफिजे की। तो आजकल के ज़माने में किसी चीज़ को याद रखने के लिए हम जो है गिनती का इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कदीम से कदीम तर ज़माने में जो है वहाँ पर गिनती का, नंबर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उन्होंने उस वक्त जो है अशिया को किस तरह से याद रखा होगा। अब हमारा कल्चर जो है नंबर्स की शक्ल में जो है इसे याद रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब नंबर ही का वजूद नहीं था, नंबर्स क्या है, सिंबल्स क्या है, ये जो है इंसानी समाज के अंदर नहीं थे, उस कल्चर में नहीं थे, तो वैसे कल्चर में लोगों का हाफिजा किस तरह से रहा होगा। तो उस तरह उस जमाने में जो है लोग क्या किया करते थे, ये कहा जाता है कि एक बकरियां चलाने वाला चरवाहा जी, चरवाहा क्या करता था, अपनी बकरियों की गिनती जब वो जो है अपने घर से बकरियां ले जाया करता था तो हर बकरी के मुकाबिल में एक कंकर जो है उठाकर अपने रोमाल में या अपने कपड़े के अंदर जो है रख लिया करता था। इस तरह से जो है जितनी बकरियां थी उतनी कंकरियां उसकी झोली में पड़ी रहेंगी। वापसी के बाद भी जो है वो एक बकरी जब अंदर जाएगी तो उसके मुकाबिल एक कंकरी साइड में रख देगा। तो इस तरह से वो गिनती किया करता था जब नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस तरह से जो है कहा जाता है कि उस वक्त जो सकाफत थी उसके हिसाब से उनका मेमोरी का कुव्वत हाफिजा हुआ करती थी। और अब जो है कल्चर बदला हुआ है, अब जो है एडवांस कल्चर है, तो इसके हिसाब से जो है मेमोरी हुआ करेगी। यानी जो भी ये प्राइमरी मेंटल फंक्शंस हैं उसके लिए जो है कल्चर यानी सकाफत जो है डिसाइड करेगी कि वो किस तरह से होंगे।
تو یہاں پر ثقافت کا اور سماجی باہمی عمل کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے۔ اسی طرح وائگٹس جو ہے کہتا ہے کہ میمونک ڈیوائسز کے ذریعے سے میموری کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ قدیم زمانے میں جو میمونک ڈیوائسز نہیں تھے، میمونک ڈیوائسز، میمونک ڈیوائسز، یہ میمونک ڈیوائسز کیا ہیں؟ ان کو جو ہے معاون وقوفی یا معاون حافظے کے آلات، معاون حافظہ یاد رکھ لیا آپ، معاون حافظے کے آلات، میمورک ڈیوائس، جیسے مائنڈ میپس ہیں، مائنڈ میپس ہیں۔ یہ دیکھیے کسی کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، جیسے ایک کار ہے، کار کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح سے جو ہے ویلز ہوتے ہیں، جو ہے اسٹیئرنگ ہوتی ہے، ٹائرس ہوتے ہیں، انجن ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے ایک میپ بنا لیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے اس کا کانسیپٹ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ مائنڈ میپ جو ہے ایک میمونک ڈیوائسز ہیں، یہ آج کل کے ایڈوانس کلچر میں یہ دیکھے جاتے ہیں، جبکہ قدیم زمانے میں اس طرح کے جو ہے میمونک ڈیوائسز نہیں تھے، کیونکہ اس وقت کی ثقافت الگ تھی۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ثقافت ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کے پرائمری مینٹل فنکشنز جو ہے کس طرح سے ابھریں گے، نشو نما پائیں گے۔ تو اس میں کلچر کا بہت زیادہ رول ہے، یہ مطلب ہے جی، رائٹ۔ اسی طرح اب لینگویج کو دیکھیے کہ لینگویج کس طرح سے معاون ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ وقوفی نشوونما کے اندر 3 ایسپیکٹس انہوں نے امپورٹنٹ لیے تھے، وہ 3 ایسپیکٹس میں سے پہلا ایسپیکٹ تھا سوشل کانٹریکٹ، سوشل کانٹیکٹ، دوسرا ایسپیکٹ تھا کلچر، اب تیسرا ایسپیکٹ ہے لینگویج یعنی زبان۔ تو زبان جو ہے یہاں کس طرح سے کارآمد ہے، کس طرح سے امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھیے۔ تو ہم جو ہے ذرا تقابل کریں گے پیاجے کا۔ پیاجے نے کہا تھا کہ پہلے اکارڈنگ ٹو پیاجے پہلے تھاٹ آتا ہے، یعنی تھنکنگ ہوتی ہے بچے کی، بعد میں جو ہے وہ لینگویج کا استعمال کرتا ہے، اس طرح سے اس نے کہا تھا۔ بعد میں جو ہے نشو نما کا عمل ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اکارڈنگ ٹو لیو وائگٹس کی پہلے تھاٹ نہیں آتا، بچہ جو ہے پہلے لینگویج سیکھتا ہے، بعد میں جو ہے اسے تھاٹس آتے ہیں، وہ لینگویج کے اندر تھاٹ کرنا سیکھتا ہے، بعد میں جو ہے وقوفی نشو نما ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ پیاجے کے برخلاف اپنا نظریہ پیش کیا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے جی۔ تو لینگویج کو کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، لینگویج کی اہمیت، زبان کی اہمیت، یہ دیکھیے۔ تو بچہ جب بھی کوئی چیز سیکھتا ہے یا وقوفی نشوونما کا اس کی وقوفی نشوونما کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو ایک تو سماج سے وہ کانٹیکٹ ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے، سماج کا مطلب کیا ہے، اپنے خاندانی افراد یا اپنے ماحول میں رہنے بسنے والے افراد، اپنے پیر گروپس، یہ سارے سماج یا سوسائٹی کا حصہ ہے۔ تو ان سے جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے جی، بات چیت کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک گفتگو آئی، اسپیچز، ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیچز یہاں پر آ گئے لیو وائگٹس کے۔ اس کے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے چومسکی کے تھیوری کے اندر کہ ایک جو ہے سوشل اسپیچ یہ کرتا ہے، سوشل اسپیچ، سماجی گفتگو، کس کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ اپنے خاندانی افراد کے ساتھ اور سماج میں رہنے والے بچلے والوں کے ساتھ، یہ سماجی گفتگو ہے۔ سماجی گفتگو کے ذریعے سے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری انفارمیشن، اس کے لیے ضروری اطلاعات جو ہے وہ اپنے لیے جمع کر لیتا ہے بات چیت کے ذریعے سے۔ وہ بات چیت جو بچہ جو ہے لاؤڈ میں کرتا ہے، آواز کے ساتھ کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، یہ سماجی گفتگو ہوئی۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ 2 ایئرس کے اندر بچے کو یہ سماجی گفتگو بچے کے اندر آ جاتی ہے، رائٹ۔ اس کے بعد دوسری جو ہے ایک گفتگو ہے جسے ہم پرائیویٹ اسپیچ کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے دیکھی گئی ہے۔ پرائیویٹ اسپیچ یعنی اس کے اندر جو ہے بچہ کیا کرتا ہے، جو گفتگو یہ سوشل گفتگو ہوئی تھی اپنے بڑوں کے ساتھ یا پیر گروپ کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ گفتگو، وہ لینگویج کو جو ہے بچہ یہاں پر
प्राइवेट स्पीच के अंदर इस्तेमाल करता है। यहाँ पर बच्चा जो है उस लैंग्वेज को अपने आप को डायरेक्ट करने के लिए, अपने आप को डायरेक्शंस देने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड गुफ्तगू होती है प्राइवेट स्पीच, जिसे हम खानगी गुफ्तगू कहते हैं। मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें समझिए। किसी मुअम्मे को हल करने के लिए, किसी एक पजिल को हल करने के लिए जो है बच्चा पहले अपने माँ बाप से पूछता है। फर्स्ट स्टेज उसका ये होता है कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी आदमी हो, कोई पजिल को देखने के बाद फौरन नहीं हल कर सकता। वो जो है पहले जो है अपने दोस्तों की, या फिर अपने खानदानी अफराद की, या फिर जो है अपने टीचर की, किसी की भी जो है अपने से बड़ों की या छोटों की, जिसको जो है मुअम्मे के ताल्लुक से नॉलेज है, उससे जो है पहले रब्त करता है, कांटेक्ट करता है, उनसे गुफ्तगू करता है कि ये क्या है, क्या चीज़ है, इसे जो है किस तरह से हल करना है। बाद में जब उसे बात मालूम हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए, जो गुफ्तगू वो दूसरों के साथ करता है वो सोशल स्पीच है, समाजी गुफ्तगू है। इसी को हम जो है कोलाबरेटिव या कोलाबरेटिव स्पीच भी कह सकते हैं, या कोऑपरेटिव स्पीच भी कह सकते हैं। कोलाबरेटिव और कोऑपरेटिव स्पीच भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक से दो अफराद मिलकर जो है कोलैबोरेशन करते हैं, आपस में मिलकर बात करते हैं, या एक दूसरे की मदद के लिए कोऑपरेट करते हैं लैंग्वेज के जरिए से। तो इसलिए जो है इसे जो है कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव स्पीच कहा गया है। यहाँ जो है क्या कर सकते हैं, वालिदैन हैं या फिर दूसरे अफराद हैं, वो अपने बच्चों के लिए, या फिर टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है इस सोशल स्पीच के अंदर उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें जो है मॉडल बिहेवियर दे सकते हैं लैंग्वेज के जरिए से। जी, लैंग्वेज के जरिए से क्या कर सकते हैं, अपने अंदर जो बातें हैं मालूम हुई, उनके मालूमात को अपने बच्चों को दे सकते हैं, मॉडल बिहेवियर दे सकते हैं। जी, उसी तरह से ओरल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ओरल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि बेटा इस तरह से हल करना है, इसे इस तरह से करना है, ये कर सकते हैं, या फिर करके दिखा सकते हैं। जो करके दिखा सकते हैं वो नमूने का तर्ज अमल है, मॉडल बिहेवियर है। और जो जबानी अदा करते हैं वो जो है लफ्जी हिदायत हैं। तो इसके जरिए से जो है बच्चे की मदद होती है, कोऑपरेशन होता है उसका। ये जो गुफ्तगू होती है उसके मुअम्मे के हल करने के लिए, वो तमाम तर गुफ्तगू हम सोशल स्पीच कहेंगे। ओके, जब ये मरहला खत्म हो जाता है, सेकेंड मरहले में बच्चा आता है, तो बच्चा खुद से जो है कोई मुअम्मा हल करने के लिए बैठा हुआ होता है। तो वो जो है, जो इसके पहले गुफ्तगू हुई थी दूसरों के साथ, कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव गुफ्तगू, वो जो है याद कर लेता है, वो लैंग्वेज को, वो स्टाइल को, वो ढंग को जो है याद करता हुआ क्या करता है, अपने आप से बातें करता है लाउड में, अपने आप से बातें करता है लाउड में। तो अपने आप से बात करता है तो वो प्राइवेट स्पीच हुई। जी, ये दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से बात करता है, खानगी गुफ्तगू। अपने आप से बातें करना, अपने आप से कैसे बात करेगा, बुलंद आवाज में करेगा। यहाँ पर जो है खामोशी के साथ नहीं करेगा, बुलंद आवाज में जो है, देखो मैं इस नंबर को यहाँ पर रखूंगा, बाद में ये करूंगा, चलो ये ऐसा सेट नहीं हो रहा है तो ऐसा करके देखते हैं, चलो ये काम करके देखते हैं, चलो इस तरह से हल करके देखते हैं। इस तरह से जो है वो अपने आप को डायरेक्ट करेगा। इसलिए यहाँ क्या कहा गया है, इस स्पीच को सेल्फ गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होने वाली स्पीच है ये, खुद की रहनुमाई के लिए, और या सेल्फ के डायरेक्शन के लिए, खुद हिदायत के लिए जो है ये प्राइवेट स्पीच खानगी गुफ्तगू इस्तेमाल में आती है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो उसके बाद थर्ड स्टेज है जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें। वो जो है तीसरा रोल लैंग्वेज का जो हम कहेंगे वो जो है इंटरनल साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। ये जो है खामोश दाखिली गुफ्तगू। प्राइवेट स्पीच के बाद जो है बच्चे जो है खामोश तौर से प्राइवेट गुफ्तगू करने लगते हैं।
ये 7 years में होता है तकरीबन। अब जो है बच्चा जोर से आवाज में नहीं करता, अपने आप को डायरेक्ट नहीं करता, यहाँ पर भी अपने आप को डायरेक्ट करता है, अपने आप में सोचता है, अपने आप में बातें करने लगता है साइलेंट इनर स्पीच में। लेकिन ये गुफ्तगू जो है खामोश होती है, अपने अंदर ही दिल में बात करता है, मंसूबे करता है, प्लानिंग करता है, जो किसी मसले को सोचकर उसके मुख्तलिफ जावियों से जो है उसे समझ सकता है, उसके हल के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढ सकता है, प्रोसेस हो सकता है, एक प्रोजेक्ट कर सकता है, किसी चीज की तखलीक के लिए जो है सोच सकता है। ये सारी चीजें जो है दाखिली तौर पर होती हैं और वो जबान के यूज के साथ होती हैं। वो जो बातें हैं, वो जो लैंग्वेज है, वो जो जबान है जो अपने आप में वो बात करता है, ये खामोशी के साथ होता है, दिल ही दिल में होती है, तो इसे जो है साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। ये 7 years के अंदर होता है। तो 3 किस्म के स्पीचेज हुए। एक जो है जी सोशल स्पीच, ये सोशल स्पीच। दूसरा जो है प्राइवेट स्पीच। ये प्राइवेट स्पीच को जो है 3 years के अंदर कहा गया है, आ जाती है बच्चे के अंदर तकरीबन। और तीसरा जो है साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, ये जो है 7 years के अंदर आ जाती है। ये लैंग्वेज का रोल है। बगैर लैंग्वेज के यहाँ पर देखिए बखूबी नशोनुमा किस तरह से होगी, ये बहुत मुश्किल काम है। लैंग्वेज होने की वजह से जो है बच्चे के अंदर बखूबी नशोनुमा बेहतर से बेहतर अंदाज में होती। ये नहीं कहा जा रहा है कि बगैर लैंग्वेज के बखूबी नशोनुमा नहीं होती। बगैर लैंग्वेज के भी बखूबी नशोनुमा देखने में आई है। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं सोसाइटी के अंदर जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए लैंग्वेज जो है कोई चीज मायने नहीं रखती। उनके लिए लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर जो है इशाराती जबान होती है, लफ्जी जबान नहीं। वो इशाराती जबान की मदद से जो है बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो वो भी एक तरह की लैंग्वेज ही हुई। ये लफ्जी लैंग्वेज ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ नहीं है जी। ये सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच जो है ये होती है। ओके, ये लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस था। कई मर्तबा सवालात हो चुके हैं प्राइवेट स्पीच के ऊपर कि बच्चा जो है जो अपने आप से सेल्फ डायरेक्टेड के डायरेक्शन के लिए या फिर सेल्फ गाइडेंस के लिए यूज करता है, वो किस किस्म की लैंग्वेज होती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक जो चीजें यहाँ पर समझनी है उनमें से एक और चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए, वो है देखिए ये चीजें सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर जो सीखना है वो है क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक है जी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे हम खुर्ब नशोनुमाई खित्ता कह सकते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, खुर्ब नशोनुमाई खित्ता कहते हैं। तीसरा जो है स्कैफोल्डिंग है, दूसरा स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग में जो है ये एक किस्म का ताउन होता है बड़ों के जरिए से। ये है, ये क्या है, ये चीजें मालूम करेंगे। और मोर नॉलेजेबल अदर, ये 3 चीजों के ताल्लुक से जो है हम मालूम करेंगे। जब हम ये सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी थ्योरी क्या है। तो पहली चीज हुई यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD या ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD जी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इसे हम जो है खुर्ब नशोनुमाई इलाका या खित्ता कहते हैं, जोन एरिया जी। इसके बारे में समझेंगे। ओके, ये जो है देखिए मैंने इसके पहले आपको मिसाल दी थी मुअम्मा हल करने की। एक लड़का है वो मुअम्मा हल कर रहा है, जो है पहली मर्तबा उसने उसने जो है किसी मुअम्मे को देखा है जी, और वो हल करने की कोशिश कर रहा है। तो पहली मर्तबा जब वो देखेगा तो उसे बिल्कुल भी उस मुअम्मे के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं रहेंगी, मालूमात
नहीं रहेंगी, या फिर वो हल नहीं कर पाएगा, हल नहीं कर पाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मुअम्मे को हल करने की सलाहियत नहीं है, मुअम्मे को हल करने की सलाहियत नहीं है, ये सिचुएशन में है बच्चा, ये फर्स्ट स्टेज है जी। अब वो जो है सोशल स्पीच के जरिए, कोऑपरेटिव स्पीच के जरिए, कोलैबोरेटिव स्पीच के जरिए से अपने वालिदैन हो या फिर अपने यानी अपने पेरेंट्स हों या टीचर्स हों जी, या फिर पीर ग्रुप्स हों या फिर जो है खानदान के दीगर अफराद हों यानी फैमिली मेंबर्स हों, या फिर आजकल जो है ये यूट्यूब वीडियोस हों, यूट्यूब हो, आप जो है मोबाइल्स के जरिए से, कंप्यूटर्स के जरिए से ये सारी चीजें आप देखते हैं। जब बच्चा कोई मुअम्मा हल नहीं कर सकता है तो पहले जो है वो अपने पीर से बात करेगा या अपने भाई बहन से बात करेगा या टीचर से या पेरेंट्स से, या फिर जो है या फिर वो यूट्यूब का इस्तेमाल करेगा या मोबाइल का इस्तेमाल करेगा या फिर कंप्यूटर्स की मदद से जो है वो कोशिश करेगा उसके बारे में जानने की। तो जब ये बात करता है सोशल यानी समाज के दीगर अफराद के साथ, तो वहां पर गुफ्तगू होगी कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव स्पीच। ये कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव स्पीच के जरिए से उसे मुख्तलिफ किस्म के मालूमात हासिल होंगे। अब कुछ कुछ मदद जो पेरेंट्स के जरिए से हुई, टीचर्स के जरिए से हुई और पीर के जरिए से हुई या फैमिली मेंबर्स के जरिए से हुई, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग जी, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ताउन। स्कैफोल्डिंग क्या है? ताउन है। किसका ताउन है? ये बच्चे का ताउन। किसके जरिए से? जो अब यहाँ पर टास्क क्या है? मुअम्मा हल करना है। मुअम्मा के ताल्लुक से जो ताउन, जो मदद जो है दूसरों के जरिए से उसे मिल रही है, उस मदद को हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे जी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको और एक बात बताता हूं। अब यहाँ पर हम मेनली ये देखेंगे ZPD क्या है देखेंगे। तो पहले उसकी सलाहियत थी मुहम्मे को हल ना कर पाने की जी। अब स्कैफोल्डिंग मिली, उसे मदद मिली पेरेंट्स के जरिए से, टीचर्स के जरिए से, पीर के जरिए से, फैमिली के जरिए से, कोई भी जरिया क्यों ना हो, जो इसके जरिए से मदद मिली, तो वो जो है प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे इसके बारे में जान लेता है और एक आला स्टेज तक पहुंच जाता है, सेकंड स्टेज तक, जहां बच्चा जो है खुद से हल कर सकता है, खुद से मुअम्मा हल कर सकता है। पहले जो है खुद से मुअम्मे को हल करने की सलाहियत नहीं थी उसके अंदर, फर्स्ट स्टेज ये था। और दूसरा स्टेज क्या हुआ? वो खुद से मुअम्मा हल कर सकने वाला बन गया, यानी मुअम्मा वो बजाते खुद हल कर सकता है। अब ये जो डिफरेंस है ये दोनों स्टेजेस के अंदर, पहले तो वो मुअम्मे के ताल्लुक से जानता भी नहीं था, अब मुअम्मे को जो है खुद से हल करने के काबिल बन गया। इन दोनों सलाहियतों के गैप का जो एरिया है उसे हम कहेंगे ZPD। उसे हम क्या कहेंगे? ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब क्या है? बच्चे का डेवलपमेंट यहीं पर हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट यहीं पर हो रहा है। बच्चे की लर्निंग कहाँ हो रही है? बच्चा कहाँ सीख रहा है? ZPD में सीख रहा है। बच्चे को स्कैफोल्डिंग कहाँ मिल रही है? ZPD में मिल रही है। बच्चे की नशोनुमा कहाँ हो रही है? ZPD में हो रही है। ओके, क्लियर? ZPD हो गया है। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, एक ऐसा एरिया है जहां पर बच्चे की नशोनुमा होती है। पहले वो नशोनुमा उसे नहीं थी, अब वो नशोनुमा हासिल हो गई। पहले उसके अंदर सलाहियत नहीं थी, अब उसके अंदर वो सलाहियत आ गई है। किस तरह से आई है? स्कैफोल्डिंग के जरिए से। स्कैफोल्डिंग क्या है? पेरेंट्स के जरिए, टीचर्स के जरिए, पीर के जरिए, फैमिली मेंबर्स के जरिए बच्चे को मिलने वाली हेल्प या ताउन, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। बच्चा जब शुरू में चलने की कोशिश करता है तो अम्मा क्या करती है उसे, अम्मा क्या करती है उसे उसे जो है अपने दोनों हाथों में पकड़कर पहले जो है सीधा खड़ा करती है उसे, बच्चे को, और उसे जो है आगे बढ़ने के लिए जो है क्या करती है? इंस्पायर करती है,
बेटा आओ दौड़ो, कोई चीज दिखाती है उसे, कोई जो है उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करती है, बच्चा जो है मुस्कुराता हुआ एक कदम दो कदम डगमगाती चाल चलता है। तो उसके बाद वो जब गिरने आता है तो माँ क्या करती है, उसे जो है फिर गिरने से बचाने के लिए अपने बच्चों को बाहों में समेट लेती है। ये स्कैफोल्डिंग है जी। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये होता है कि बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो माँ जो है इसी तरह से उसे बाहों में नहीं लेती है, हमेशा गिरने से नहीं बचाती, बल्कि धीरे धीरे माँ का जो हेल्प है वो कम करने लगती है, कम करने लगती है। धीरे धीरे वो माँ की तरफ से मिलने वाली मदद कम होती जाती है, बच्चा जो है दूर से भागता हुआ माँ के करीब आने लगता है। तो शुरू में जब उसके पास सलाहियत नहीं थी तो स्कैफोल्डिंग ज्यादा थी, केयर ज्यादा था। अब जब धीरे धीरे उसके अंदर जो है वो सलाहियत आने लगती है तो स्कैफोल्डिंग को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। पहले जब सलाहियत नहीं थी तो स्कैफोल्डिंग बहुत ज्यादा दी जाती थी। अब धीरे धीरे क्या किया जाता है, स्कैफोल्डिंग को कम करके लास्ट में जीरो कर दिया जाता है। अब वो जो है खुद से हल करने के काबिल बन चुका होता है जी। ये स्कैफोल्डिंग देने का मरहला है। एक और मिसाल आप स्कैफोल्डिंग के ताल्लुक से मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। ये फोटो देखिए, आपको जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि स्कैफोल्डिंग क्या है। ओके, ये देखिए, आप ये तस्वीर देखिए।